Hi guys, welcome to Legal Current Affairs Weekly Roundup. So this is the new series that we have started with. इसके अंदर we talk about the important Supreme Court and High Court judgments, right? I explain you the background and everything else. I do really good research to help you out. Then we talk about the important law-related news. Now, who should watch this video? This is the question. If you're preparing for any law entrance exam, it can be your CLAT, it can be your AILET, it can be SLAT, it can be Maharashtra CET, it can be BHU, any law entrance exam. It can be Judiciary, it can be UPSC. This is going to help everyone. You're preparing for 3-year law entrance exams like that of DU, PU, BHU, Maharashtra CET. It is going to help you. You are a lawyer, you are a law student, you must watch this video because I am not only explaining you things, I'm also helping you, with staying updated. You'll stay updated if you watch these videos every week, and I'm also providing you free downloadable judgments on www.loggery.com. that is our website. And specifically if you are preparing for LLM, if you are preparing for LLM entrance exam, do watch this video. It is going to help you out. Now let's see that which are the topics that we are going to specifically cover in this video. सबसे पहले we are going to cover creditors can move against personal guarantors under Indian Bankruptcy and Insolvency Code, Lalit Kumar Jain versus Union of India and others. This is the judgment that we are going to talk about in detail. I'm going to explain you things from scratch. Right, next is Narada bribery case. We are going to understand the sections, the ingredients of the sections, criminal law sections, right? Then we are going to talk about the Khan Energy versus Union of India case or Republic of India case, a very important case that you should know if you're preparing for any law entrance exam or you're interested in arbitration in general. Then we are going to talk about Legislative Council in West Bengal. These are the main topics that we are going to talk about in today's video. If you have not seen the previous videos, जो आपकी हमने पहले videos करी हैं वो आपने नहीं देखे, तो link description box में मिलेगा, जरूर देख लेना. Right, चलो, let's get into this video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Creditors can move against personal guarantors under the Indian Bankruptcy and Insolvency Code, Lalit Kumar Jain versus Union of India. So in your notes, give this heading. I'm going to explain you everything, but yeah, please give this heading. And if you're preparing for CLAT LLM exam, then it is very important, or any other LLM exam, entrance exam, please note down the name of the judgment. Let's understand some of the common terms that we need to understand the judgment. Right now, who is a promoter? A promoter is no one. He or she is the person who is referred to as the founder of the business. A promoter is a generic term associated with the person who starts the business. The person who has started the business is said to be the promoter. The founder of the business is said to be the promoter. Please note down, what is insolvency? Insolvency is a situation of financial distress in which a person or business is unable to pay their debts. ठीक है ना, एक ऐसी situation जिसके अंदर a person or a business is unable to pay the money, दैट किसी के पैसा देना है बट वो दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे. ठीक है ना, दैट इज, लेट्स रीड इट अगेन. Insolvency is a state of financial distress in which a person or business is unable to pay their debts. ठीक है ना, पैसा देना है वो दे नहीं पा रहे, तो insolvency. Right, what is corporate? अब इस जजमेंट में corporate वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले पढ़ लेते हैं. A form of business operation that declares the business as a separate legal entity guided by a group of officers known as the board of directors. एक ऐसा business operation है जिसके अंदर वो कहता है कि business separate है और directors अलग हैं. ठीक है ना, डायरेक्टर्स और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं लॉ के लिए. ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हो ना, सेपरेट लीगल एंटिटी guided by a group of officers.
ऑपरेशन दैट डिक्लेयर्स द बिजनेस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जनरल रूल एक याद रखना है आप लोगों ने। जनरल रूल क्या है कि डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जितना पैसा देना है उसके लिए जनरल रूल ये है कि डायरेक्टर नहीं लायबल हो सकता। कंपनी अपने एसेट्स जो कंपनी ओन करती है, कोई बिल्डिंग ओन करती है, किसी से कंपनी ने पैसा लेना है तो उसमें से वो ले सकते हैं, बट डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जब डायरेक्टर कैन बी हेल्ड लायबल, पर जनरल रूल ये कहता है कि डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। एक्सेप्शंस इन द केस हो सकता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन करी है डायरेक्टर ने, या डायरेक्टर गारंटर है, ठीक है ना। कंपनी ने लोन लेना था तो डायरेक्टर ने गारंटी दे दी कि अगर कंपनी नहीं देगी तो मैं दे दूंगा, या फिर कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आपको डेटर कौन होता है, जिसने पैसे देने हैं, या डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे द मनी, हु हैज टू गिव द मनी, ठीक है ना, ओज द मनी बेसिकली, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट मतलब एक बिजनेस जिसने पैसे देने हैं, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना। ये टर्म भी बार बार यूज होगी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसे आईबीसी भी बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, है ना। लॉ की आइज के अंदर ये एक पर्सन है, ठीक है ना, हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, ठीक है ना, जो ओ करता है, जिसने पैसे देने हैं किसी के। कॉर्पोरेट पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 subsection 7 of IBC। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसे IBC भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इज अ बैंक्रप्सी लॉ, इज अ कोड फॉर इन लॉ। किससे रिलेट करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी जो पैसे दे नहीं पा रहा है, बैंक्रप्सी मतलब जिसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मेरे क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं, मैं पैसे नहीं दे सकता, या क्रेडिटर्स जितने भी हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट एक प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट हेल्प करती है, मतलब गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, बट गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है जिसके अंदर कंपनी का टेक ओवर किया जाता है, फिर देखा जाता है कि एसेट्स कितने हैं उसके, ठीक है ना। सबको बोला जाता है आप सबमिट करो कि कितना पैसा किसका देना है, जिससे लेना है उसको देखा जाता है। तो एक प्रोसेस है बैंक्रप्सी, जब कोई डिक्लेयर कर देता है कि मेरा दिवाला निकल गया है, तो देखते हैं ना हम कि कुछ परसेंटेज में पैसे वापस आता है, पूरा का पूरा पैसा नहीं आता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो पर्सन हैज गॉन बैंकरप्ट, राइट। एनसीएलटी जो है वो एडजुडिकेट करता है मैटर्स रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज, इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज। सेक्शन 126। अब देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, हमने वर्ड यूज किया है ना पर्सनल गारंटी, हमने नहीं, मतलब जजमेंट में यूज किया हुआ है पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटर। ये हमें समझना जरूरी है कि ये कौन होता है, पर्सनल गारंटी क्या होता है, पर्सनल गारंटर क्या होता है। तो हम देखेंगे 126 सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज नोट कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिफाइन करता है, पढ़ेंगे, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कॉमा, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। वह थर्ड पर्सन ने कोई प्रॉमिस किया है या कोई लायबिलिटी ली है और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता है, या वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाता है, तो फिर गारंटर ये करेगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब अगर वो नहीं करता है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है वो प्रॉमिस या लायबिलिटी पे ऑफ करने के अंदर, डिस्चार्ज करने में लायबिलिटी, तो ये थर्ड पर्सन वो प्रॉमिस या वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। आगे समझ। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो पर्सन, प्लीज नोट इट डाउन, अपनी नोटबुक में लिखो श्योरिटी और उसके आगे लिखो अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी। अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी, उसको हम क्या कहते हैं, श्योरिटी। प्लीज नोट इट डाउन। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, ठीक है ना, जिसकी गारंटी लेता है, ठीक है ना, जिसकी गारंटी ली जाती है उसका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है ना। एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। जिसको गारंटी दी जाती है कि भाई अगर ये प्रिंसिपल डेटर नहीं करेगा तो श्योरिटी कहता है मैं कर दूंगा, वो किसको देते हैं हम, क्रेडिटर को। अ गारंटी में बी ईदर ओरल और रिटर्न। अब ए मेरे पास आया कि मैं ₹10,000 का लोन ले रहा हूं बैंक से, ठीक है ना। ए मेरे पास आया, बी के पास आया कि मैं ₹10,000 का लोन ले रहा हूँ बैंक से, और बैंक कह रहा है कि आपको गारंटर लेकर आना पड़ेगा, अगर आपने नहीं पे ऑफ किया तो ये 10,000 बी पे करेगा, ठीक है ना। तो अगर हमने जो पीछे पढ़ा उसका क्या मीनिंग हुआ, कौन क्या बना, ए क्या बना, ए बना प्रिंसिपल डेटर, ए बना प्रिंसिपल डेटर,
ठीक है ना, जिसकी मैं श्योरिटी बन रही हूँ, कि मैं ले रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर ये ए नहीं देगा 10,000 तो मैं बैंक को 10,000 दे दूंगी। तो मैं क्या बनी, बी क्या बना, श्योरिटी, या जिसे हम गारंटर भी कहते हैं। ठीक है, और बैंक क्या हुआ, क्रेडिटर, जिसने हमें पैसे दिए हैं, प्रिंसिपल डेटर जिसने लिए हैं और जिसकी मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगी। अब एक बात जो नोट करने वाली है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, ट्राई पार्टियाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो इसे हम ट्राई पार्टियाइट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गारंटर क्या होता है, श्योरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ओके, बैकग्राउंड ऑफ द केस देख लेते हैं। फाइनली अब हम केस पे आ गए हैं। केस की बैकग्राउंड क्या है कि 15 नवंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अलाउइंग क्रेडिटर्स, यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, टू मूव अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर द इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। ठीक है ना, देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला 15 नवंबर 2019 को, क्या कहते हुए कि जो पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, पर्सनल गारंटर जिसने गारंटी दी है, किसके लिए गारंटी दी है, कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए, जो बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट डेटर्स हमें पता है ना, जिन्होंने पैसे देने हैं और जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं वो गारंटर्स के अगेंस्ट कहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर वो एनसीएलटी में जा सकते हैं। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन कर दी। अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्सनल गारंटर तो कहता ही है कि मैं पे कर दूंगा, अगर ये नहीं पे कर पाएंगे तो हम देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन थी बेसिक। नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड बाय एज मेनी एज 19 promoters founder before different high courts, claiming that it was always a management board that ran the company and therefore the promoters alone should not be held liable for the default on debt repayment। अब आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जब भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बड़ी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को लोन देता है तो वो गारंटी मांगता है, और गारंटी कौन देता है, गारंटी फाउंडर्स या प्रोमोटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, वो ही गारंटी देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जरूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिचुएशन रियलिटी है। जैसे अनिल अंबानी है, ठीक है ना, ही वाज वन ऑफ द पर्संस हु फाइल्ड द केस। ठीक है ना, तो यही कि जो अब क्या था, नोटिफिकेशन आई, प्रोमोटर्स ने चैलेंज कर दिया। क्यों चैलेंज कर दिया, क्योंकि प्रोमोटर्स ही तो पर्सनल गारंटर्स कौन थे मोस्ट ऑफ द केसेस में, प्रोमोटर्स ही पर्सनल गारंटर्स थे। ठीक है ना, तो इनको पता था कि इनके पीछे बैंक पड़ गया था, और पड़ भी गया था। जैसी नोटिफिकेशन आई वैसे ही बैंक्स ने प्रोमोटर्स को नोटिस कर दिया था कि आपको इतना पे करना है, इतना करना है। तो वो कोर्ट में आ गए, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैड ट्रांसफर्ड द पिटिशंस फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स टू इटसेल्फ ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सारे पिटिशन सुन लो और डिसाइड कर दो। अब देखते हैं क्या हुआ। A bench of justices L. Nageshwar Rao and S. Ravindra Bhatt. Please note down the names if you're preparing for CLAT or any other law entrance exam. The names are really important. Held that the November 15, 2019 government notification allowing creditors, usually financial institutions and banks, to move against personal guarantors under the Indian Bankruptcy and Insolvency Code was legal and valid. ठीक है ना, कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये नोटिफिकेशन है ना बच्चों, ये लीगल एंड वैलिड है। कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट सेड देयर वाज एन इंट्रिंसिक कनेक्शन। इंट्रिंसिक मतलब रिलेटेड, बहुत ज्यादा रिलेटेड है, रिलेशनशिप बहुत है या रिलेटेड है, कौन, पर्सनल गारंटर्स और कॉर्पोरेट डेटर्स जो गारंटी दे रहे हैं और जो बिजनेसेस हैं वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इंटीमेट कनेक्शन दैट मेड द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीशीज अंडर द आईबीसी। अब
अब उनके एडवोकेट ने क्या आर्ग्यू किया वो हम देख लेते हैं। उनके एडवोकेट ने ये आर्ग्यू किया, गाइज आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई रेड द जजमेंट एंड इट इज अ रियली ब्यूटीफुल जजमेंट। इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, if you want to learn something, then do read the entire judgment. I must say a very beautifully written judgment and very beautifully argued case, right? So you should read the judgment. Now, coming back, what did the advocate say? उनके एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट ये था कि आपकी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये क्यों मेंशन किया है कि पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। ये एक स्पेसिफिक, अब पर्सनल गारंटर तो बहुत होते हैं, मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स के ही तो पर्सनल गारंटर्स नहीं होते, इंडिविजुअल्स ये वो बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आपने ये स्पेशल कैटेगरी क्यों बनाई है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गारंटी जो कॉर्पोरेट डेटर को, जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस को दे रहे हैं, उनको ही क्यों आपने नोटिफाई किया है। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है इसलिए, ठीक है ना। दूसरा, इंटीमेट कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इसलिए सेपरेट स्पीशीज बनाया, इसलिए सेपरेट कैटेगरी बनाई है, ठीक है ना। उसके बाद इट वॉज अगेन दिस इंटीमेसी दैट मेड द गवर्नमेंट डिसाइड दैट कॉर्पोरेट डेटर्स एंड देयर पर्सनल गारंटर्स शुड बी डेल्ट बाय अ कॉमन फोरम। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन से क्या हुआ, देखो ये नहीं था कि पहले पर्सनल गारंटर की गर्दन नहीं दबोच सकते थे या उसको नहीं पकड़ सकते थे, पकड़ पहले भी सकते थे, बट केस अलग कोर्ट में चलता था, डीआरटी में चलता था, डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल में चलता था मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अलग अलग कोर्ट्स में केस चलता था, तो कुछ पता ही नहीं चलता था कितना डेट बन रहा है, क्या करना है, डेट्स देते रहते थे, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा बेसिकली कंफ्यूजन थी। बट अब एक ही कोर्ट के अंदर केस चलेगा, एक ही कोर्ट के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो हमें सब कुछ मतलब क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अभी हम उनके वर्ड्स, जजमेंट के वर्ड्स पढ़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोर्ट, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि एक ही फोरम, एनसीएलटी ही कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर जो जिसने घोषित कर दिया हाँ भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, उसका भी केस चल रहा है। अगर उसने घोषित किया कॉर्पोरेट डेटर ने कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तभी गारंटर आया ना गेम के अंदर, तो अब गारंटर का भी केस और कॉर्पोरेट डेटर का भी केस एनसीएलटी कोर्ट ही सुनेगी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हम एग्जैक्ट वर्ड्स देखेंगे जजमेंट्स के जो ऑनरेबल जजेस ने यूज करे हैं, एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर। Right, it is clear that parliamentary intent was to treat personal guarantors differently from other categories of individuals. वही बात कि उनके लॉयर्स ने इशू या आर्ग्यूमेंट ये रेज किया था कि पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर की जो कैटेगरी बनाई है वो गलत है। तो ये जो इंटेंट है पार्लियामेंट का ये सही है, क्योंकि रिलेटेड है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना कि रिलेटेड है कौन, पर्सनल गारंटर एंड कॉर्पोरेट डेटर्स आपस में रिलेटेड है, क्योंकि वही प्रमोटर वाली बात की, प्रमोटर जो होते हैं वो फाउंडर्स होते हैं और वही गारंटी देते हैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है ना। द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज टू हुम दे स्टूड गारंटी एज वेल एज, ठीक है ना, वो दोबारा ये कह रहे हैं कि जो कनेक्शन है इन दोनों में, ठीक है ना, वो रीजन है कि ठीक है कैटेगरी वैलिड है, एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ टू सेपरेट प्रोसेसेस बीइंग कैरिड ऑन डिफरेंट फोरम्स। तो क्या होता था पहले, मैं पहले बता चुकी हूँ, डीआरटी में या किसी और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती थी पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट, और एनसीएलटी में प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। बिजनेस की प्रोसीडिंग्स किस में चल रही होती थी, एनसीएलटी में, और आपकी डीआरटी में चल रही होती थी नॉर्मली पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट। तो दो डिफरेंट फोरम्स में चल रही होती थी, तो बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन थी, कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा, विद इट्स अटेंडेंट अनसर्टेन आउटकम्स, ठीक है ना, अनसर्टेन आउटकम्स होती थी, डेट्स पड़ती रहती थी, उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है, तो बहुत ही अनसर्टेन था, ठीक है ना। लेड टू कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर हुम द एजुकेटिंग अथॉरिटी वाज कॉमन विद द कॉर्पोरेट डेटर टू हुम दे हैड स्टूड गारंटी। तो बेसिकली अब क्या कर दिया है, द एनसीएलटी वुड बी एबल टू कंसिडर द होल पिक्चर। तो एनसीएलटी तो बेसिकली ये नहीं है कि पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट पहले एक्शन नहीं ले सकते थे, लेते थे, केस फाइल कर सकते थे, बट अब क्या हो गया, एक कॉमन फोरम के आगे जो कि एनसीएलटी है, कॉमन फोरम के आगे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट भी केस चलेगा और पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट भी चल सकता है। तो एक फोरम के आगे तो क्या होगा, होल पिक्चर, क्लियर पिक्चर दिखेगी, ठीक है ना, कितना लोन है, कितना क्या है, किसने कितना गारंटी दी थी, ठीक है ना, तो वो एक क्लियर पिक्चर दिखेगी, तो उससे बहुत ज्यादा
फायदा होगा, राइट, एज इट वर अबाउट द नेचर ऑफ द एसेट्स अवेलेबल ईदर ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट डेटर्स इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ठीक है ना, कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, कितना पर्सनल गारंटर को देना पड़ेगा, तो वो एक फोरम में आगे एक प्लेस पे आ जाएगा, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा बैंक्स के लिए या क्रेडिटर्स के लिए जिन्होंने पैसा दिया है, तो उनके पैसे निकल कर आ सकते हैं, ठीक है ना। और इवन लेटर facilitate the COC in framing realistic plans keeping in mind the prospect of realizing some part of creditors dues from personal guarantors। तो COC क्या होता है? COC आपकी होती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब जिसने उस कंपनी को पैसा दिया है, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना, बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इनकी कमिटी होती है, तो ये मोस्टली प्लान करते हैं कि ठीक है हमें इतना नुकसान होगा, आपको इतना होगा, ठीक है, हम ये ले लेंगे, हम वो, तो एक प्लान बनता है, ठीक है ना, एक क्लियर कट प्लान बन पाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, लेट्स से ए इज अ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना, ए इज अ कंपनी हु हैज टू पे सर्टेन डेट्स, ठीक है ना, टू बी, राइट, टू बी। Now B says to A that okay, pay my rupees 10,000. Like 10,000 is a very less amount. I'm just giving you an example, right? A says I don't have the money. B goes to NCLT. B goes to NCLT that see he so and so person has to pay rupees 10,000. I have served notice. There are a lot of procedures like notice देना होता है ये वो, ठीक है ना। I have served him the notice, given him the time to pay me the amount, but no, he's not paying. The corporate debtor is not paying. So NCLT would, call A that why you are not paying B is 10,000 rupees. So when A refuses, there are a lot of procedures that are followed, that have been laid down, right? We are not going to get into the procedures. One of the things that needs to be done is part of the procedure is a resolution plan. Now what is a resolution plan? Basically it is a proposal that aims to provide a resolution to the problem ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना, वो पूरा प्रपोजल होता है कि ठीक है, और वो कौन बनाता है? कमिटी, COC कहते हैं उसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी एक कमिटी बनती है, ठीक है ना, और वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है इतने उनके एसेट्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं उनके पास, अगर हम ये बेच दें या ऐसा कर दें वैसा कर दें, ठीक है ना, इतना पैसा इन्होंने इससे लेना है, तो वो सारा होता है, एंड देन दे प्रपोजल रखते हैं, एक रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, कौन? COC, वो अप्रूव करते हैं इस प्लान को, ठीक है ना, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वर्कर्स के पैसे होते हैं वो सबसे पहले पे करने होते हैं, तो ऐसे होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स ले डाउन किए हुए हैं, ठीक है। तो एक रेजोल्यूशन प्लान बनता है जो कि प्रपोजल होता है, ठीक है ना। जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान सैंक्शन हो जाता है और फाइनलिटी अटेन कर लेता है, पढ़ लेते हैं इसको, The sanction of a resolution plan and finality imparted to it by Section 31 does not per se operate as a discharge of the guarantor's liability. तो क्या होता है जब ये resolution plan approve हो जाता है, तो एक तरह से corporate debtor जो है ना, जो उसकी liabilities होती हैं वो pay off हो जाती हैं, मतलब वो discharge हो जाती हैं, liabilities discharge for corporate debtor. But court कहती, तो उनका advocate का argument ये था कि क्योंकि corporate debtor डिस्चार्ज हो गया लाइबिलिटी से, उसकी लाइबिलिटी खत्म होगी, तो गारंटर की भी खत्म होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, द सैंक्शन ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान एंड फाइनलिटी imparted to it by Section 31 does not per se operate as a discharge of a guarantor's liability. रेजोल्यूशन प्लान का सैंक्शन होने का मतलब ये नहीं कि गारंटर, पर्सनल गारंटर की लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज होगी, नहीं। अब ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से आया था ये भी देख लेते हैं। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। मतलब को एक्सटेंसिव मतलब सेम, गारंटर इज सेम लाइक दैट ऑफ द विद द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है ना। अगर हम इसकी वर्डिंग्स पढ़ लेते हैं, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को, श्योरिटी कौन होता है? गारंटर। द लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसे लिए हैं, जिसने पैसे देने हैं, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये बेयर प्रोविजन है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं भाई, द मेयर सैंक्शनिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान डजंट मीन्स दैट doesn't leads to discharge of the liability of the guarantor, ठीक है ना। As to the nature and extent of the liability, much would depend on the terms of the guarantee itself, on the terms of the contract of guarantee पे depend करेगा कि क्या है क्या नहीं। Mere sanctioning of resolution plan doesn't leads to discharge of liability, right? तो ये आपका केस है।
Central Bureau of Investigation arrested 4 ministers in the Narada bribery case. So we are going to discuss what is Narada bribery case. Story discuss करेंगे and उसके बाद हम sections कौन से sections हैं उनके ingredients में जाएंगे so that you can understand. जब भी if you are preparing for any law entrance exam, this is very much important that जब भी आप कोई केस देखते हैं आप उसके sections का bare provision पढ़ें. वो कैसे पढ़ना है, we are going to do that together, and when you read the newspaper you see a section, you're going to do that yourself also, right? That ways your understanding is going to increase. For lawyers and law students also I'll say the same, right? Sting operation was conducted by Narada News founder Matthew Samuel for over 2 years in West Bengal. तो क्या होता है स्टिंग ऑपरेशन? स्टिंग ऑपरेशन के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, ठीक है ना. अगर मान लीजिए कोई करप्शन कर रहा है, ठीक है ना, उसको पकड़ने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एंड फिर उसके बाद उसको मतलब मोस्टली टीवी पे दिखाया जाता है. एंड फिर उसके अगर मतलब कोई मिनिस्टर है वो पैसे मांगता है नॉर्मल पैरालांस में, बट पब्लिक बताना नहीं चाहती, कोई उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बनना चाहता, तो फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन क्रिएट करते हैं, सब कुछ रियल क्रिएट करते हैं कि जो मिनिस्टर है उनको लगे सब कुछ रियल है, बट एक्चुअल में उनको फंसाने के लिए, मिनिस्टर का सच बाहर निकालने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है, राइट. तो एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था नराडा न्यूज़ फाउंडर मैथ्यू सैम्यूल ने, ठीक है ना. 2 साल लंबा ये स्टिंग ऑपरेशन था, वेस्ट बंगाल की स्टेट में कंडक्ट किया गया था, ठीक है ना. It was conducted in 2014 for the news magazine Tehelka. Samuel is the former managing editor of Tehelka. It was published on private news website Narada News months before 2016 West Bengal. ठीक है ना, ये publish किया गया Narada News की जो website है उसके ऊपर, और 2016 की West Bengal Assembly election से पहले, right. उसके बाद क्या हुआ, एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन सैम्यूल फॉर्म्ड अ फिक्टिशियस कंपनी, मतलब एक कंपनी बनाई उन्होंने इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस करके, ठीक है. मैंने कहा ना सब कुछ रियल टाइप का क्रिएट करते हैं कि किसी को शक ना हो. ही देन अप्रोच टीएमसी मिनिस्टर्स, एमपीज एंड लीडर्स आस्किंग देम फॉर फेवर्स इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है ना. वो उन्होंने अप्रोच किया फिर मिनिस्टर्स को, एमपीज को इन रिटर्न ऑफ मनी देकर काम करवाने के लिए अपनी कंपनी, जो फिक्टिशियस कंपनी इम्पैक्स कंसल्टेंसी उन्होंने बनाई थी. It was 52-hour footage photographed by Samuel and his colleague Angel Abraham. In it, then Trinamool Congress MPs and state ministers were seen accepting alleged bribes in the form of वार्ड्स ऑफ कैश, ठीक है ना. तो वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे फुटेज के अंदर, ठीक है. दिस वाज अलेजली इन एक्सचेंज ऑफ एक्सटेंडेड अनऑफिशियल फेवर्स फॉर इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस व्हिच वाज फ्लोटेड बाय सैम्यूल हिमसेल्फ, ठीक है ना. तो सैम्यूल ने एक कंपनी बनाई, ठीक है ना, मिनिस्टर्स को अप्रोच किया कि भाई मेरा काम करवा दो, पैसे ले लो, ठीक है ना. तो ये एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कुछ, ठीक है, कुछ टीएमसी मिनिस्टर्स थे, मतलब जो गवर्नमेंट जो पावर में थी वो उनके मिनिस्टर्स थे, लीडर्स थे, उनको अप्रोच किया. तो वो फुटेज के अंदर वो ब्राइब लेते हुए, पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड इट्स ओन प्रॉब. स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये देखा तो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया, विच बुक्ड सैम्यूल, जिसने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था स्टिंग ऑपरेशन, उसके अगेंस्ट मल्टीपल सेक्शंस आईपीसी पनिशमेंट, फॉर्जरी का केस दर्ज कर दिया, डिफेमेशन, ठीक है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B 500 469, ठीक है ना. ऑन August 5, 2016 द हाई कोर्ट स्टेट द प्रॉब, जो ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट की थी इन्वेस्टिगेशन, वो रोक दी गई हाई कोर्ट द्वारा. कहा ऑब्जर्विंग दैट पुलिस कैन नॉट रन अ कॉन्करेंट इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद कोर्ट मॉनिटर्ड प्रॉब. तो कोई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि तुम रुक जाओ, हम कर रहे हैं. On March 17, 2017, the Calcutta High Court ordered that a preliminary probe will be conducted by CBI. तो उन्होंने कहा कि CBI इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी. द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड CBI टू रजिस्टर एन FIR. तो CBI को ये भी बोल दिया गया कि अगर कोई आपको लगता है कि इज इन्वॉल्व इन द केस, आप उसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवा सकते हो. रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर ऑन रिक्वेस्ट, अब ये देखिए ये जो नाम आ गया ना वेस्ट बंगाल गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कौन है गवर्नर, ये क्वेश्चन आ सकता है. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ CBI सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ, तो ये 4 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, इनके अगेंस्ट इन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रोसिक्यूशन चला सकते हो. गवर्नर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अकॉर्ड सैंक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉ एज ही हैपन्स टू बी द अपॉइंटेड अथॉरिटी फॉर सच मिनिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन कि हम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सके, ठीक है ना.
अब द सीबीआई अरेस्ट दस केम आफ्टर गवर्नर अप्रूव, ठीक है ना, तो अब वो अरेस्ट हो चुके हैं एंड अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि कुछ की बेल भी हो गई है। सबसे पहले हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डेफिनेशन 120A डिफाइन करता है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू और कॉज टू बी डन। मतलब सबसे पहले तो वी नीड टू और मोर पर्सन्स, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, मिनिमम दो लोग तो चाहिए। अग्री, ठीक है ना, अग्रीमेंट और अग्री और कॉज टू बी डन, ठीक है ना, अग्रीमेंट, ठीक है। एंड इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, इलीगल एक्ट, या फिर एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट इलीगल मीन्स, इसका मतलब क्या है कि वैसे वो एक्ट लीगल है बट उसको इलीगल मीन्स से करना चाहते हैं, वैसे एक्ट लीगल है बट उसको इलीगल मीन्स से करना चाहते हैं। टू और मोर पर्सन्स अग्रीमेंट हो उनके अंदर कुछ इलीगल एक्ट करने का या लीगल बट इलीगल मीन्स के थ्रू करने का। सच एन अग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना, सच एन अग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब अगर इलीगल एक्ट करने के लिए अग्रीमेंट, मेयर अग्रीमेंट करा जाए, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, राइट। मेयर अग्रीमेंट टू डू एन illegal act is also an offense, but provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation: it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. मतलब illegal act ये immaterial है कि illegal act is main object या फिर वो incidental है, मतलब object कुछ और है बट ये illegal act भी करना पड़ेगा किसी और object को achieve करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। तो हमने ये तो निकाल लिया था कि टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब इलीगल एक्ट, अगर इलीगल एक्ट है, ठीक है ना, इलीगल एक्ट के केस में मेयर अग्रीमेंट इज एन ऑफेंस। मेयर अग्रीमेंट, एक्ट नहीं लिया, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं किया, सिर्फ अग्रीमेंट क्या कि ये हम कर देंगे, ये भी ऑफेंस है। बट जो दूसरी कैटेगरी है लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, उसमें मेयर अग्रीमेंट नहीं, अग्रीमेंट प्लस एक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मेयर अग्रीमेंट इज नॉट एन ऑफेंस, नॉट ऑफेंस, बट अग्रीमेंट के बाद अगर एक्ट कर दिया, एक्ट होना जरूरी है तब ऑफेंस है, ठीक है ना। बट इलीगल एक्ट के केस में मेयर अग्रीमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फॉर्जरी, सेक्शन 463 defines forgery of IPC, ठीक है। Whoever makes any false document, मतलब what is forgery? Basically making of false document, making of false document is forgery, or electric record or part of a document or electric record, ठीक है। मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को हम फॉर्जरी बोलते हैं। विद इंटेंड, इंटेंशन भी होना चाहिए टू कॉज डैमेज और इंजरी, टू कॉज डैमेज और इंजरी, कॉमा है तो वो हमारे लिए जरूरी है, तो कॉज डैमेज एंड इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल और टू कॉज एनी पर्सन और टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड कमिट्स फॉर्जरी। अब क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू कमिट एनी ऑफ दीज, टू कमिट एनी, यहाँ से ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ ना, यहाँ से ये इनमें से कुछ भी कमिट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो फॉर्जरी के टू इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्लस इंटेंशन टू डू एनी ऑफ दीज मेंशन, ठीक है ना, ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज forgery. Defamation,
सेक्शन 499 इन द आईपीसी टॉक्स अबाउट डिफेमेशन, डिफाइंस डिफेमेशन। तो हम देखते हैं whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any purpose। imputation का मतलब होता है चार्ज या कोई क्लेम करे, ठीक है, that someone has done something, ठीक है ना, accusation basically concerning any person intending to harm। अब देखिए, ठीक है ना, imputation and publishes any और publishes makes और publishes, ये देखिए यहाँ पे publishing का बहुत ही ज़्यादा important ingredient, essential ingredient है। publishing any imputation any concerning any person intending to harm, intention क्या होनी चाहिए, intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter etc। तो इसकी exceptions बहुत दी हुई हैं, defamation के अंदर exceptions बहुत है। तो पहले हम इसके ingredients देख लेते हैं। देखो, जो डिफेमेशन के अंदर है ना, द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्राइवेट कम्युनिकेशन ने ए ने बी को कुछ कहा बी के बारे में, ए ने बी को बी के बारे में ही कुछ कह दिया, ठीक है ना, बी खुद ही है उसको ही बोल दिया तो नहीं, बट अगर ए ने उसके बारे में पब्लिश कर दिया, ठीक है ना, या माइक पकड़ के मीटिंग चल रही थी उसके बाद में बी के बारे में सब कुछ बोल दिया, तो फिर वो पब्लिशिंग मानी जाएगी। तो पब्लिशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसेंशियल इंग्रेडिएंट। जो इम्प्यूटेशन है, जो चार्ज है, वो रिटन में हो सकता है, बाय वर्ड्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सच इम्प्यूटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग द रेपुटेशन, ठीक है ना। नंबर 1 इज पब्लिशिंग, नंबर 2 इज इंटेंशन क्या होनी चाहिए, टू हार्म, इंटेंशन होनी चाहिए टू हार्म द रेपुटेशन, ठीक है ना। और पब्लिकेशन ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, बाय वर्ड्स भी हो सकती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, साइंस, ये भी माना जाएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो है ये वाला, इम्प्यूटेशन मतलब चार्ज ऑफ ट्रुथ which public good requires to be made or published। मतलब डिफेमेशन, वो डिफेमेशन नहीं होगा अगर कोई ट्रुथ बोल रहा है फॉर पब्लिक गुड, फॉर पब्लिक गुड इट रिक्वायर्स टू बी पब्लिश्ड। अगर वो पब्लिक गुड के लिए पब्लिश किया गया है और वो सच है तो इट वोंट अमाउंट टू डिफेमेशन। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अप्रूव सेटिंग अप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, देखो, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, जो स्टेट की वर्किंग देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होती है ना हर स्टेट के अंदर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो एक हाउस का तो जरूर होता है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही होगा, एक हाउस, ठीक है ना। बट कई स्टेट्स में 2 हाउसेस भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। 2 हाउसेस का मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, बायकैमरलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, बायकैमरलिज्म। याद रखना, बायकैमरलिज्म मींस 2 हाउसेस। सेंटर में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। सेंटर में तो 2 हाउसेस होंगे ही होंगे, बट स्टेट के लिए ऑप्शनल है। कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिकैमरलिज्म। एक हाउस होना मतलब यूनिकैमरलिज्म, ठीक है। 2 हाउसेस होना मतलब बायकैमरलिज्म, ठीक है। तो अब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एक और हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा। व्हाट वी विल कॉल इट, वो उसको क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। ओके, under article 169 of the constitution the proposal of legislative council has to be passed in parliament with a certain majority, ठीक है ना। अभी ये पार्लियामेंट को पास करना होगा। अदर स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने आपको बताया ना, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जस्ट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनिकैमरलिज्म है, बट कुछ स्टेट्स में 2 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आप बैट कम बचपन में हमारे घर वाले हमें जितने मर्जी बैट दिला देते थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो कम ही पड़ जाते थे, ठीक है ना। तो जो मम्मी जिस चीज से वो घर का जो पोचा होता है वो साफ करती हैं, तो वो हम लेते थे ना। मैंने उससे बहुत बैट बॉल खेला और वो टूट जाती होती थी और बहुत पिटाई होती थी सच में। तो मेरे लिए तो हमेशा बैट कम ही रह जाता था। मेरी मम्मा जितना मर्जी मुझे बैट खरीद के दे देती थी क्रिकेट खेलने के लिए, बट एंड में ना वो जो पोचा धोने वाला वो बैट होता था, उसी से मैं खेलती थी क्रिकेट और वो टूट भी जाता था, तो बड़ी पिटाई होती थी। तो मैंने ऐसे याद किया है, बैट कम बैट बिहार, आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। और अगर वेस्ट बंगाल ऐड हो जाता है तो हम एम को उल्टा कर देंगे तो MW,
ठीक है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये BMW भी बन जाएगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो यार, सो दैट आपको याद रहे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अबॉलिश्ड इन 1969, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1969 में ये अबॉलिश कर दिया गया था वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली, मतलब 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और 40 से कम मेंबर्स भी नहीं हो सकते, ये प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद लाइक राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कॉन्टिन्यूइंग चेंबर, मतलब कॉन्टिन्यूअस परमानेंट बॉडी है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होती है जैसे कि लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। अगर हम आर्टिकल 169 पढ़े, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए इसको, मतलब लिख लीजिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 168, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है अबॉलिश करने की, ठीक है ना, अबॉलिश करने की पावर, ठीक है, प्लस और फॉर द क्रिएशन की भी पावर पार्लियामेंट के पास ही है ऑफ सच काउंसिल इन अ स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल इफ द लेजिस्लेटिव, अब यहाँ तक तो ये पार्लियामेंट की पावर बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट अप्रूव करती है, बट उससे पहले if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting, उससे पहले पहला स्टेप क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेजोल्यूशन अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है ना, वो हो गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो कर दिया है वेस्ट बंगाल ने। तो अब सेकंड क्या है, पार्लियामेंट को अप्रूव करना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। तो ये मेजॉरिटी कितनी है ये सारा प्लीज अब नोट्स बना लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना, क्योंकि अब 169 भी इम्पॉर्टेंट हमारा आर्टिकल हो गया है। Union government is vigorously defending its case against an international arbitration order asking it to refund $1.2 billion to Khan Energy. Now some newspapers have said 1.2 billion, some are saying 1.4 billion. So as and when I get a source wherein is trustworthy, I'll update in the next video or on my Instagram or even on YouTube community page, right? Or if you have any reliable source, then you can comment down below. Okay, now December 2020, now we are going to understand what has happened. So there is this international arbitration which is going on between Khan Energy versus Republic of India, ठीक है ना। This is a very important case if you are preparing for any entrance exam, right? Especially LLM and CLAT LLM and CLAT LLB, there can be a question or passage from this case. So yeah, let's see. A 3-member tribunal at the Permanent Court of Arbitration in The Hague in the Netherlands ruled against India in its tax dispute with the UK-based oil and gas company Khan Energy, right, and its subsidiary, right? So अगेंस्ट इंडिया डिसीजन लिया गया कि इंडिया को पे करने हैं वही $1.4 बिलियन और $1.2 बिलियन, राइट। देखिए हमें ना बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी केस की, अगर हम ये केस समझना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो पेन और पेपर ले लीजिए और जो मैं साथ साथ लिख रही हूँ वो लिखते रहिए, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जून 2006 में क्या हुआ, कान यूके होल्डिंग लिमिटेड, जिसे CUHL कहेंगे हम इसके बाद, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो जून 2006 के अंदर, ऐसे लिख लीजिए, जून 2006 के अंदर CUHL कहाँ रजिस्टर हुई, यूके के अंदर, ठीक है, फाइन। अब क्या हुआ, अगस्त 2006 में कान इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, इसमें नाम इंडिया है बट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जर्सी USA एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कान यूके होल्डिंग इंडिया, मतलब ये CUHL यूके वाली पेरेंट कंपनी बन गई और उसकी सब्सिडरी CIHL कहाँ पे रजिस्टर करी गई, USA के अंडर। Under a share exchange agreement between CUHL UK and CIHL USA, इन दोनों के बीच में थोड़ा एक्सचेंज होता है। CUHL जो कि पेरेंट कंपनी है यूके के अंदर, यूके में, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड शेयर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटायर इशूड कैपिटल ऑफ 9 subsidiaries of Khan Group held directly and indirectly by CUHL that were engaged in the oil and gas sector in India. दोबारा पढ़ते हैं, CUHL ट्रांसफर्ड शेयर्स, किसको, CUHL जो पेरेंट कंपनी थी यूके वाली,
ठीक है ना, उन्होंने CIHL USA की जो उनकी सब्सिडरी कंपनी थी उसको क्या किया, उसको अपनी ट्रांसफर शेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटायर इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 9 सब्सिडरीज ऑफ द कान ग्रुप हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट वर इंगेज इन इंडिया, मतलब कुछ उनकी सब्सिडरीज इंडिया में इंगेज थी, वो सब किसको ट्रांसफर कर दी, CIHL USA को। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रांसफर हुआ। अब अगस्त 2006 में इन्होंने क्या किया, कान इंडिया लिमिटेड एक और कंपनी, अगस्त 2006 के अंदर ही इन्होंने एक और कंपनी CIL इंडिया में रजिस्टर करवा ली। ठीक है ना, तो हमारा पहले क्या हुआ था कि CUHL जो यूके की पेरेंट कंपनी थी उसने CIHL को ट्रांसफर किए थे इंडिया के जितने भी सब्सिडरीज थी। ठीक है ना, उसके बाद अक्टूबर 2006 के अंदर CUHL UK ने सोल्ड शेयर्स ऑफ CIHL USA टू CIL एंड इन एन इंटरनल ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो ये इंडिया की सब्सिडरीज इधर गई थी ना USA को, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हमने CIL जो इंडिया वाली है इसको ट्रांसफर कर दो, ये यहाँ से USA वाली को ये इंडिया में जो इन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई इसको ट्रांसफर कर दी। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हुई ना इनके बीच में, कि पहले इधर से इधर गया, ठीक है ना, फिर इधर से इधर गया, ये वाली जो ट्रांजैक्शंस थी इसका डिस्प्यूट हो गया। 2012 में क्या हुआ, जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्चार्ज वोडाफोन ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन के ऊपर इंडियन टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज ने कहा था कि आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। वो वोडाफोन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दे दी। ठीक है ना, तो इन वोडाफोन इंटरनेशनल BV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट रूल्ड दैट द इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना, कोर्ट ने रूल किया कि इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू इम्पोज टैक्स ऑन एन ऑफशोर ट्रांजैक्शन, मतलब जो बाहर हुई है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज, मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज वेयर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ इंडियन रेजिडेंट कंपनीज एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज इन द ट्रांजैक्शन। मतलब एक तो ट्रांजैक्शन बाहर हुई, ठीक है ना, बिटवीन 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज, ठीक है, जिसके अंदर कंट्रोलिंग, मतलब उनका जो इंडियन कंपनी का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इंडियन रेजिडेंट कंपनीज एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो उनके पास, इंडियन अथॉरिटीज के पास, दे डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू इम्पोज टैक्स। ठीक है, ये 2012 के अंदर जजमेंट आई। मार्च 2012 में क्या हुआ, जनवरी 2012 में जजमेंट आई। इंडियन पार्लियामेंट पास्ड फाइनेंस एक्ट 2012। क्यों पास किया? The Finance Bill overruled Vodafone judgment by clarifying the Indian Income Tax Act definition of capital assets transfer through। ठीक है ना, बेसिकली जो वोडाफोन की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसको ओवररूल करने के लिए, ठीक है ना, उसको नलिफाई करने के लिए ये जो एक्ट था ये पास किया गया। ठीक है ना, एज चेंज द टैक्स एक्ट डीम्ड एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट इन एन ऑफशोर कंपनी एज अ टैक्सेबल ट्रांसफर विद इन इंडिया इफ द शेयर्स, मतलब वही कि अगर ऑफशोर भी कंपनीज, ठीक है ना, अगर वो जो ट्रांसफर है वो if the shares or interest derive directly or indirectly its value substantially from the assets located in India। ठीक है, वो कहते हैं अगर इंडिया में उसके एसेट्स हैं, ठीक है ना, और ट्रांसफर उससे रिलेट करता है, इवन तो ऑफशोर ट्रांसफर है, तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा कि उन्होंने कमाया है कुछ और इसीलिए वो टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट आई। ठीक है ना, moreover because the finance bill clarifies the meaning of the terms that have been used by the tax act all along since the tax act took effect on April 1962, this rule would operate retrospectively। retrospective का अब हम समझ रहे थे वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव को, तो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 उसके अंदर है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सो बेसिकली एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही लॉकडाउन लगता है, जब भी लॉकडाउन लगता है तो वो मैरिज या क्राउड गैदर करने पे, मैरिज की एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोक लगा देते हैं ना कि 15 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे या 50 से प्लस लोग नहीं इकट्ठे होंगे, ऐसा कुछ होता है ना।
मान लो उन्होंने डेट चूज करी कि 20th अप्रैल 2021 से जो भी मैरिजेस होंगी वो 15+ उसमें आप लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, राइट। ये तो लॉ हो गया कि फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने 19th अप्रैल को नोटिफिकेशन ये निकाल दी, ये लॉ बना दिया कि जो भी ये करेगा उसको पेनल्टी लगेगी 1 लाख और जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा सा लॉ बना दिया फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए। बट अगर सरकार कहे कि नहीं, ठीक है, 19/4/2021 से नहीं, ये जो लॉ है हम अप्लाई कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 से, जिसने भी मैरिज करी, ठीक है, और उसमें 15+ लोग इकट्ठा हुए, उनको 1 लाख फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछली डेट से लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, कि 1 लाख फाइन देना पड़ेगा जिसने भी ऐसे शादी करी है पिछली डेट से। और यही टैक्सेशन वाले लॉ के अंदर भी पिछली डेट से लॉ अप्लाई हुआ, ठीक है ना। अब एक और चीज जो आपको नोट करनी है, क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ का जो है वो आप आगे वाली डेट से ही अप्लाई कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो बेनिफिशियल है, ठीक है ना, अगर वो बेनिफिशियल है कन्विक्ट के लिए या अक्यूज्ड के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो क्रिमिनल लॉ नहीं अप्लाई कर सकते ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली। तो अब ये जो लॉ है ये कब से हो गया, रेट्रोस्पेक्टिवली, रीचिंग बैक टू ऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड इन 50 years। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस पिछले 50 years में हुई हैं उनको खोल सकता था, ठीक है ना। और तब फंसे कान एनर्जी वाले, दो इनकी तो ट्रांजैक्शंस 2006 की थी, बट ये वाली जो अमेंडमेंट हुई उनको उसमें वो फंस गए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनको नोटिस भेज दिया कि यू आर लायबल टू पे सच एंड सच अमाउंट ऑफ मनी, आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। इन जनवरी 2014 द इंडियन टैक्स असेसिंग ऑफिसर इनिशिएटेड रीअसेसमेंट proceedings against CUHL under section 147 and 148 of the Income Tax Act 1961 provide for reassessment proceedings in case where income has escaped assessment, ठीक है ना। तो उन्होंने वो केसेस खोल लिए, उन्होंने पुराने जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो खोल ली। इनकम टैक्स अथॉरिटीज देन डिसाइडेड दैट सिंस कान यूके हैड मेड कैपिटल गेन्स इट ऑट टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स अप टू इतना उनको पे करना पड़ेगा, ₹24,500 करोड़ का उनका टैक्स बना दिया, ठीक है ना। द कंपनी इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज ऑन कैपिटल गेन्स डिफरेंटली एंड रिफ्यूज टू पे, ठीक है ना, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। सेवरल राउंड ऑफ लिटिगेशन इंडियन टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले, हाई कोर्ट के अंदर चला, ठीक है ना, और दिल्ली हाई कोर्ट में चला। इवेंचुअली ये लोग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए और वहां पे इट वाज हेल्ड दैट इंडिया हैड फेल्ड टू अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर 1994 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूके के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना, अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। द ट्राइब्यूनल ऑर्डर्ड इंडिया टू कॉम्पनसेट द क्लेमेंट्स फॉर द टोटल हार्म सफर्ड बाय कान एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियाज ब्रीचेस। तो इनको बहुत कान एनर्जी के जो शेयर्स थे वो इन्होंने होल्ड कर लिए, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ जो था इनका बिजनेस इफेक्ट हुआ इंडिया में, नो डाउट अबाउट दैट। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कहा कि इंडिया शुड पे द कंपनी, नॉट द कंपनी शुड पे टू इंडिया, राइट। तो व्हाट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये आपको पता होना चाहिए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आर agreements between two countries states for the reciprocal promotion and protection of investments, ठीक है ना। मतलब दोनों कंपनी सेम वो करते हैं कि हम भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपकी कंपनीज को, या हम इतना इन्वेस्ट करें आप करो, ऐसा सब कुछ इन ईच अदर्स टेरिटरीज बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज सिचुएटेड इन ईच स्टेट। दोबारा पढ़ लेते हैं। Are agreements between two countries for their reciprocal promotion and protection of investments, ठीक है ना। India had signed its first bid in 1994 with the United Kingdom. It happens to be the first bilateral investment treaty, ठीक है ना, जो 1994 में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में साइन करी गई, ठीक है। चीजें आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पता होनी चाहिए, देख लेते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द हेग, द नीदरलैंड्स इन 1899। इंपॉर्टेंट इसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं, LLB के, या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सर्व द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड टू फैसिलिटेट arbitration and other forms of dispute resolution between the states,
ठीक है. It is an independent non-government panel of independent and impartial experts. It generally comprises of 3 members nominated by the parties. तो इसमें arbitrators जो होते हैं वो पार्टीज ही नॉमिनेट करती है और अपॉइंटेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन और बाय अ नेशनल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज टू रेंडर अ फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड. अवार्ड मतलब डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट जो होता है उसको हम अवार्ड बोलते हैं, जजमेंट जिसे हम कहते हैं. जो कान एनर्जी वाला केस है, कान एनर्जी वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके डिसीजन जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट इंडिया ने अपील फाइल कर दी है. तो अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, अपीलेट जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करती है. तो ये है राइट. सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना. ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है. अगर आप लाइक करोगे, इस वीडियोज़ को व्यूज़ हो गए तो मुझे सच में बहुत मोटिवेशन देगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसी सी. एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो और चैनल पे, तो मैं वो वैसी वीडियोस करना चाहूँगी जो आप लोग चाहते हैं. गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को. और हाँ गाइस, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो देखें. तो यार, दैट्स इट. लॉगिरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय.